Welcome back. Next illustration is illustration 55, and it is having a very important point which do needs clarification, and that point deals with premium on redemption of preference shares or debentures. That is, in our short forms, FIFA DIP, the second last P. Last P is provision for doubtful debt. Illustration 55, I'll make two videos. First video, this present one, is the one in which premium on redemption of preference shares or debentures, you will find that inside the balance sheet. And in the next one, you will find premium on redemption of preference shares not inside the balance sheet but in the additional information only. You have to understand the difference between the two if you want to catch the pulse of the concept and logic. So starting with illustration 55, starting point is as usual surplus difference 250 minus 1 lakh, closing minus opening. Security premium reserve will never ever be taken as a part of T, that is transfer to reserve, because this amount of 5,000 is not transferred from current year profits, that is surplus, that is balance in statement of P&L opening balance, plus profit earned during the year. These are the two amounts which we have at our disposal. From these we make two appropriations, that is appropriation towards shareholder dividend and appropriation towards reserve. Security premium is the excess of issue price over the face value of the share, and we receive security premium, V means company, whenever the company issues securities at a premium. So security premium के अंदर जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो इस साल के प्रॉफिट्स में से नहीं आया है, उसे आपने कभी भी टिप्पी में टी का पार्ट नहीं लेना है. I stands for interim dividend. Turn the page, you will find interim dividend of 15%. It is to be paid on equity shares and it is paid on 31st of Jan 2023. साल के पहले दिन, that is 1st April 2022, हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे 3 लाख के. और क्वेश्चन में चेक कीजिए, 6th एडजस्टमेंट में नए इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं प्रीमियम पे 10% और वो भी साल के एंड में, दैट इज 31st मार्च 2023. हम इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं 31st जैन 2023. 31st मार्च 2023 जैन के बाद आता है, तो जिस दिन हम इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं उस दिन हमारे पास नए इक्विटी शेयर्स थे ही नहीं. ये लॉजिक हो गया. जो ट्रिक है वो बहुत सिंपल है. ट्रांजैक्शन हो रही है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो साल के एंड में हो रही है, तो वैल्यू उठेगी साल के स्टार्टिंग की, विच इज 3 लाख. 3 लाख का 12%, सॉरी 3 लाख का इंटरिम डिविडेंड है 15%, दैट इज 45,000, वो आ गया आपका टिप्पी का आय. देन कम्स पी. पी स्टैंड्स फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड, वो भी है हमारे पास. प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर देना है हमें, पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, जो कि हैं हमारे पास पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख के. 2 lakhs के preference shares पे 12%, that is 24,000. It is but obvious that if equity shares are getting any dividend, then the preference must have got them before it is being given to the equity shareholders, because that's why they are known as preference shareholders, because they have two preferences. Preferences at the time of payment of dividend and preferences at the time of winding up of the company in repayment of their money. सो आपके पास पी प्रपोज डिविडेंड आ गया जी, प्रेफरेंस शेयर्स वाला. उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट पी, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. उसके लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखी हैं आपको. टैक्स की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा सेटअप लगेगा दो वैल्यूज वाला. करंट ईयर जाएगा ऊपर, लास्ट ईयर जाएगा नीचे. सो 12,000 जाएगा जी हमारा ऊपर टिप्पी में, और इनकम टैक्स पेड के तौर पे जाएगा 24,000 पिछले साल का. टिप्पी का हमारे पास पी तक हम पहुंच गए. ई हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पर नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स भी नहीं है, टिप्पी री खत्म हो गया. मूविंग ऑन टू फीफा डिप. आई हमारे पास है इनटैंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज्ड. इनटैंजिबल एसेट्स हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है नहीं. एफए के लिए ध्यान दीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है वो आपने सेल कर दी 25,000 पे, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 15,000. वो आपका फीफा का एफए आ गया. डी डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर नीचे दे रखा है आपको 70,000. आई इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स थे हमारे पास. डिबेंचर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं. आपके नए इक्विटी शेयर साल के एंड में इशू हो रहे थे, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि डिबेंचर्स भी साल के एंड में ही इशू हुए होंगे. सो 1 लाख के ऊपर 10%, दैट इज 10,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स. P stands for premium on redemption of preference shares or debentures. अब ध्यान दीजिए,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको मिल रहा है अदर करंट लाइबिलिटी में। थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा जा रहा है कि प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 दिसंबर 2022। इसी साल में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5% के प्रीमियम पे रिडीम किया। अब पॉइंट ये आता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो आपकी बैलेंस शीट में पड़ा है। पिछले साल 10,000 का था, इस साल 5,000 का था। बैलेंस शीट में जो चीज भी पड़ी होती है वो वहां इसलिए पड़ी होती है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में पड़ी होती है। ट्रायल बैलेंस में पड़ी होती है बिकॉज वो लेजर में पड़ी होती है और लेजर में उसका बैलेंस आया होता है। लेजर बनता है जर्नल एंट्री से। तो सबसे पहले अगर कोई आइटम आपको बैलेंस शीट में पड़ी मिल रही है, इसका मतलब उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, उसका लेजर बन चुका है। लेजर की बैलेंसिंग फिगर आई थी जो कि ट्रायल बैलेंस में गई थी। ट्रायल बैलेंस से आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसके बाद आपने बनाया बैलेंस शीट। तो अब आपकी ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ये 10,000 से 5,000 हो रहा है। ना तो ये अदर करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा, ना ही आपका ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फीफा डिप के सेकेंड लास्ट पी में आएगा। उसका रीजन अगर आपको समझना है तो आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से का मतलब आप चेक करें, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स पिछले साल थे 2 लाख के। ये पिछले साल थे, हमें नहीं मालूम कब इशू हुए। हम ये भी एज्यूम करने को तैयार हैं कि ये पिछले साल ही इशू हुए हो गए। ये पिछले साल इशू हुए तो हमने इशू की एंट्री की होगी। मैं 2 एंट्रीज नहीं कर रहा, मैं वो 2 बोल रहा हूं। चलो मैं कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू हमारे पास है 12% टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, सपोज कीजिए ये 2 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये 2 लाख में से 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स जो आप इस साल रिडीम कर रहे हो वो हमने पिछले साल इशू किए। मैं 1 लाख की इसलिए वैल्यूज दे रहा हूं ताकि कट हो जाए और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। आपने 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर सपोज कीजिए पिछले साल इशू किए और 1 लाख रुपीस आपको मिल गए। आपने जब ये शेयर्स इशू किए तब डिसाइड हो चुका था कि प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम होंगे तो वो प्रीमियम पे रिडीम होंगे 5% के। अगर आपको डिवेंचर्स की एंट्रीज आती हो तो व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, हमारी सेकंड एंट्री में आता है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सेम सेटअप हम यहां उठा रहे हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। 1 लाख का 5% जी 5,000 और इधर भी 5। अगर आप इसको एंट्री को पूरी 2 लाख से करना चाहते हैं कि हमने 2 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स पिछले साल ही इशू किया, नो प्रॉब्लम, लेट्स शिफ्ट टू दैट। अब 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हम इशू कर देते हैं 10,000, 2 लाख का 5% 10,000। ये एंट्री हो गई हमारी इशू की एंट्री। अब पिछले साल ही हमने ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे। अब हमारा लॉ कहता है कि ये जो सारे आपके लॉस ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वगैरह के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, इन्हें आपको उसी साल के एंड में राइट ऑफ करना है। तो हमें इसे राइट ऑफ हमने पिछले साल ही कर दिया होगा। कहां से राइट ऑफ किया होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L, फाइनेंस कॉस्ट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से हमने जो है इसको राइट ऑफ कर दिया होगा। ये आपका 10,000 जो है वो चला गया। अब आपका जो 10,000 है ये आपका चला गया, आपने इसको जो है वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ कर दिया। अब आपका जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो गया। लेकिन कौन से साल कम हुआ? पिछले साल कम हुआ। तो जब आपने पिछले साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा तो आपने वहां 10,000 जो है फीफा डिप के अंदर सेकेंड लास्ट पी में ऑलरेडी ऐड कर दिए होंगे। आज की डेट में इस साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये पिछले साल ही हो चुकी है। आप चेक कीजिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस है, इट्स अ लायबिलिटी। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 कर रखा है 3rd बुक में तो आप जाकर देख सकते हैं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मिलेगा या अदर करंट लायबिलिटी में मिलेगा। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है, अगर आपका डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मिलेगा।
अगर वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है तो वो अदर करंट लाइबिलिटी में मिलेगा। आपके पास यहाँ पर अदर करंट लाइबिलिटी में चेक कर लीजिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 का था और वो 5,000 का रह गया, बिकॉज यहां पर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक की एंट्री पास की है। इस साल आपने 1 लाख रुपीस के अपने प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो रिडीम कर दिए हैं। 1 लाख का हमारे पास 5% आया 5,000, ये बन गया 1 लाख 5,000, 1 लाख 5,000, 1 लाख 5,000। तो जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे तो आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम लिखेंगे और अमाउंट आएगी 1,05,000। आपकी अदर करंट लाइबिलिटी का ना तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ट्रीटमेंट होना है और ना ही ट्रीटमेंट होना है फीफा डिप के सेकेंड लास्ट पी में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगले पी की बात करें तो वो हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल गिवन है और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉटम ऑफ द पेज इलस्ट्रेशन 55 ट्रेड रिसीवेबल्स। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10 से 15 हो गए, 5,000 बढ़ गए, हमने फीफा डिप के आखिरी पी में डाल दिए। उसके बाद हमारे पास ड्रिप आता है। ड्रिप के लिए हमारे पास 10% इन्वेस्टमेंट्स हैं, चेक कीजिए वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं। जब सारी चीजें साल के एंड में हो रही हैं तो हमने इन्वेस्टमेंट भी बाय की होगी साल के एंड में, इसलिए ओपनिंग वैल्यू उठेगी विच इज 30,000। 30,000 का 10% इज 3,000, तो 3,000 है हमारा इंटरेस्ट ड्रिप का, वो आ जाएगा जी। उसके बाद जी हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हैं वो आते हैं, जिसमें हम ट्रेड पेबल कंसिडर करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सारा आपको पॉइंट समझाया उसका। उसके बाद जो आपका 10% जो उसके बाद आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स है वो भी कंसिडर नहीं होगी, ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर नहीं होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज बिल्कुल कंसिडर होगा। ट्रेड रिसीवेबल के लिए नोट्स टू अकाउंट्स पे जाना पड़ेगा, आपको डेटर की वैल्यू 2 लाख और 1 लाख लेनी पड़ेगी। 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है, माइनस होगा। यू कांट टेक 185 एंड 90,000 बिकॉज you have taken provision for doubtful debt separately, so you have to take your debtors at gross value. Since you have taken your provision for doubtful debt at the as a subtraction and you have taken it as a separate item, so debtors are to be taken separately, provision for doubtful debt is to be taken separately. That's why we can't take the net value, that is 1,85,000 and 90,000. यहां पर आपके पास जी खत्म हो जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। पिछले साल की टैक्स की वैल्यू को इनकम टैक्स पेड ले लीजिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी का अकाउंट, जिसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, बाय बैंक आ जाएगा, बाय लॉस आ जाएगा और बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर टू बैंक आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टू बैंक आउटफ्लो हो जाएगा, बाय बैंक जो है वो इनफ्लो हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो 10% इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदी हैं 50,000 की, वो आउटफ्लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनफ्लो। मूविंग ऑन टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है 50,000 है, प्लस आपके पास जो है प्रीमियम आएगा। प्रीमियम आपका 10% का है, 50,000 का 10% 5,000, 50 प्लस 10 इज 55,000, दैट इज प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम 1 लाख प्लस 5,000, दैट इज 1,05,000। उसके बाद आपके पास जो आप अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी चेक कर सकते हैं। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो 5,000 से बढ़ रहा था कर्टसी इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 50,000 का 10% 5,000। उसके बाद आपके पास जो है बोरोइंग्स आ जाता है। डिवेंचर्स आपने इशू किए हैं, डिवेंचर्स आपके जो है इशू हो रहे हैं 1 लाख के, वो इनफ्लो हो जाएगा। उसके बाद हमारा इंटरिम डिविडेंड जो टिप्पी री में हमने ऐड किया था वो नीचे जाके माइनस हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऊपर ऐड किया था, नीचे जाके माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऊपर ऐड किया था, नीचे जाकर वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपके पास जो है ए, बी और सी आएंगे। डी पार्ट आपका जो 4th रोमन न्यूमरल है उसको 1 + 2 + 3 को ऐड अप करके आएगा। 5th रोमन न्यूमरल जो है हमारे पास दैट इज एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर से चेक कर लीजिए, आपके पास दो आइटम्स इसमें बैठेंगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग। 80 + 42 दैट इज 122 प्लस जो है आप अपने 4th का टोटल इसमें डालेंगे, आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये है आपकी इलस्ट्रेशन जहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको बैलेंस शीट में पड़ा हुआ मिल रहा है। अगली वीडियो में आपको QR कोड जो है इलस्ट्रेशंस आपके TS गरेवाल की बुक की, उसकी इलस्ट्रेशन में करवाऊंगा। वहां पर आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है
वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा, और वो एक सेपरेट एक यूनिक सिचुएशन होगी जिसका इन एंट्रीज पे अफेक्ट जो है वो पड़ रहा होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर क्लियर करूंगा। आई होप आपका ये पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा, और जब आप अगली इलस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कभी भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स के लिए क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लॉजिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। Do like, share and subscribe the channel and the videos if you find them logical and beneficial to you. All the best, stay healthy and safe.